Good afternoon everyone. So this is our third lecture of light and today we are going to study about sign convention for reflection by spherical mirrors, and after this we will study mirror formula. Okay, so shall we start? See, आज जो टॉपिक दिख रहा है बेटा, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स. Am I audible? Yes, ma'am. चलो फिर ठीक करते हैं. नाउ बेटा, हैव यू लर्न अबाउट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स? आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पढ़ा था? Yes, sir. यू नो अबाउट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, राइट? Yes, ma'am. देखो, एक्चुअली क्या होता है, मिरर में हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का यूज करना है एंड वी विल स्टडी अबाउट व्हाट आर द साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स. So by using this new Cartesian coordinate system, we will define the various distances for mirror. Okay. For example, I am rubbing the board. You have put down the topic, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. What kind of mirror is this? I'm concave. Concave. This point is pole. Okay. Now, according to new Cartesian coordinate or the new sign convention, this mirror is actually used as a Cartesian coordinate system, in which this pole is taken as origin. This pole is taken as origin. आपको ये पता है ना? This is a Cartesian coordinate system. This is plus x direction. This is minus x direction. This is plus y direction and this is minus y direction. समझ में आया? और ये क्या होता था? This point where the two lines intersect are known as origin. आपको ये पता है ना? Abscissa और coordinate या ordinate याद है? Which one is abscissa? Which one is abscissa? Yes, ma'am. X axis or y axis? Which one is abscissa? Ma'am, the X. The X. And coordinates? Y axis. Very good. Now you understand this, right? अब हमने क्या किया ना, हमने मिरर को इस तरीके से रख दिया so that the pole of the mirror appears as origin of the Cartesian coordinate. ये समझ में आया? Yes. You have placed the mirror like this so that the origin of the Cartesian coordinate appears to be at pole of the mirror. ठीक है? Now, you will take principal axis of the mirror as x axis. This axis, which is known as principal axis for a spherical mirror, is actually what? X axis. और pole यानी origin से right hand side पे जो भी मतलब distance होगा, that is taken as plus x. Okay? While on the left side it is taken as minus x. ठीक है? Okay, have you got it? समझ आया बेटा? Yes, ma'am. Now, similarly, this axis. This is what? Y axis. ये कैसी एक्सिस होगी? Y axis. You know that upper origin ये कैसी वैल्यू देता है y की, पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव. I'm positive. तो ये कैसे डायरेक्शन हो गया? प्लस y and this will become Minus. yeah. So this is a simple Cartesian coordinate or new sign convention. New sign convention कहता है, the first point of new sign convention is that the object is always placed to the left of the mirror. कोई भी अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो वो कहाँ रखा जाएगा?
मिरर के लेफ्ट साइड पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट आप मेजर करोगे अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट। आप देख रहे हो इट इज प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसकी हाइट कैसे लोगे आप? प्लस वाई डायरेक्शन में। कैसे लोगे? प्लस वाई, ठीक है। समझ में आया? Yes, ma'am. सिमिलरली जो इमेज फॉर्म होगी बी डैश ए डैश, इसकी जो इसकी वैल्यू होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? बी डैश और ए डैश किस तरफ अलाइंड है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में कि अपवर्ड डायरेक्शन में? हाँ, Negative. नेगेटिव। Direction. समझ में आया? इसकी वैल्यू पॉजिटिव में, अगर आपका ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, यू विल टेक द वैल्यू एज पॉजिटिव वाई एक्सिस, while if the object if the image is downside, the value will be taken as minus y coordinates में, ठीक है। अब एक चीज और देखो, आपको पता है आप पोल से इस तरफ चलोगे तो सारी वैल्यूज एक्स में आएंगी, नेगेटिव में, और अगर आप पोल से राइट हैंड साइड पे चलोगे तो सारी वैल्यूज कैसे आएंगी? पॉजिटिव। तो अगर आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, इफ यू आर मेजरिंग द डिस्टेंस, if you are measuring the distance on left side, all the distance comes to be negative. समझ में आया? Distance Yes, ma'am. on left side of pole will be taken as, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, will be taken as negative, Negative. while the distance on right side of pole is taken as, कैसा लिया जाएगा? Is taken as positive. The distance perpendicular to the principal axis upward side, बेटा लाइट चली गई, wait, light is gone, just wait for 5 or 4 minutes, okay, just wait. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Negative. और जो भी मिरर के राइट हैंड साइड पे डिस्टेंसेस है उसको आप कैसे लोगे? पॉजिटिव. नाउ टेल मी अबाउट व्हाट अबाउट फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर. फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? Negative. वेरी गुड, यू नो अबाउट इट. पता है ना, पोल से आप सारे डिस्टेंस पोल से लोगे, पोल से फोकस का डिस्टेंस कितना हो गया? फोकल लेंथ. और आपको पता है कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? इसके लेफ्ट साइड पे होती है, तो लेफ्ट साइड पे होगी तो कैसी हो जाएगी? नेगेटिव. सिमिलरली फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर का फोकस किधर होता है? बिहाइंड द मिरर और इन फ्रंट ऑफ द मिरर? बिहाइंड द मिरर. तो फिर फोकल लेंथ उसकी कहाँ पे होगी? पोल से फोकस का डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ. पॉजिटिव. समझ में आ गया ये चीज? बेटा क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक जो एमसीक्यू में आएगा ना वो ऐसे ही आता है कि फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज पॉजिटिव और नेगेटिव इलिस्ट्रेट. आपको बताना होगा तो आपको पता चल जाएगा ना. अकॉर्डिंग टू न्यू साइन कन्वेंशन all the distances on the left of pole is taken as negative. Therefore, for concave mirror, since the principal focus lies in front of the mirror or left side of the mirror, the focal length is taken as negative. ठीक है? आया समझ में? अच्छा, ऐसा देखो लाइट आ जाएगी तो मैं बताती हूँ, अदरवाइज मैं थोड़ा सा ऐसे पढ़ के आपको समझा दूं. अच्छा, यहाँ पे 10 से ज्यादा है, 10th भी ज्यादा है. आई डोंट थिंक तुम लोग को पता भी है.
चलो अच्छा, द सेकेंड पॉइंट ऑफ साइन कन्वेंशन इज ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, इमेज कहाँ फॉर्म हुई है, सब कुछ आप कहाँ से लोगे, पोल से। आपसे मतलब मिरर के पोल से देखोगे कहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट है, आप वो डिस्टेंस मेजर कर लोगे। ठीक है, दिस इज द सेकेंड रूल। समझ आया? हेलो, Yes, ma'am. ओके। बोर हो गए हो क्या तुम लोग? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. आ रहा है. अच्छा, just wait for 2 minutes. I will call Ayush sir for the lights. एक सेकेंड ना, just be there. और कोई डाउट्स हो तो डाउट्स पूछो मुझसे अभी। आयुष sir? मैं तो इंसान हूँ, तो कौन है? कौन? If you are having any doubt, you can ask. पूछ लो, कोई डाउट्स हो तब तक ये सिस्टम सही हो रहा है। Anyone? No, no doubts, ma'am. लाइट समझ में आ रहा है? हाँ, ma'am, आ रहा है. चलो अच्छा, ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद दो रूल्स यही होते हैं, पोल के राइट हैंड साइड पे एक्स एक्सिस पे अगर आप चल रहे हो, प्रिंसिपल एक्सिस पे चल रहे हो, तो राइट साइड पे क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव डिस्टेंसेज होंगे, सारी वैल्यू आप प्लस में लोगे। और अगर आप लेफ्ट साइड पे चल रहे हो मिरर के, तो नेगेटिव में सारी वैल्यूज लोगे। सिमिलरली अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हो तो पॉजिटिव वैल्यूज, और बिलो डायरेक्शन में चल रहे हो तो नेगेटिव वैल्यूज। चलिए, क्या हो रहा है प्रॉब्लम सर? 2 बार ऐसे हो चुका है। Excuse me, ma'am. या बेटा, Ma'am, there is an activating chapter. या Ma'am, we do in lab or एक्चुअली यू हैव टू डू द एक्सपेरिमेंट्स इन लैब ओनली। आपको सारे एक्सपेरिमेंट्स लैब में ही करने हैं। एक बार मुझे वो एक्टिविटी दिखाना, आई विल सी वेदर इट इज बीइंग एट होम, और आप लैब में करोगे। ठीक है, okay, ma'am. अब ये तुम्हें सारे साइन कन्वेंशन समझ में आ गए ना? परपेंडिकुलर डायरेक्शन अपवर्ड साइड में पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव है नेगेटिव? कॉनकेव, Negative. वेरी गुड। और कॉन्वेक्स की, Positive. चलो अब इसके बाद मैं मिरर फॉर्मूला स्टार्ट कर दूं। आपको साइन कन्वेंशन समझ में आ गया, मिरर फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, जस्ट वी विल स्टार्ट दिस मिरर फॉर्मूला। ओके बेटा, चलो जस्ट वेट फॉर 1 मिनट और 2 मिनट। Okay, ma'am. असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे हो कॉपी में सारा? Yes, ma'am. मुझे बस 4-5 बच्चों ने भेजा था कल वाला। आई हैव गॉट ओनली 4 or 5 स्टूडेंट्स असाइनमेंट, टोटल असाइनमेंट जो मुझे लाइट का मिला है। तो मुझे पूरा असाइनमेंट दीजिए बेटा, ठीक है? सारे बच्चे, आई विल टेक द अटेंडेंस ऑफ एवरी स्टूडेंट। जितने बच्चों ने आज क्लास अटेंड करी है उन सबका मुझे आज चाहिए, जितना भी मैंने साइन कन्वेंशन लिखाया है। आई विल सेंड अ पिक्चर ऑफ साइन कन्वेंशन आफ्टर द क्लास। मुझसे आप लोग मांग लिया करो तो आई विल सेंड इट यू, है ना? मैं आपको भेज दूंगी तो आप उसको क्या करोगे, लिख लोगे अपनी कॉपी में साइन कन्वेंशन। ठीक है, चलो। I'm good to have you. क्या बेटा? चलो आई विल स्टार्ट मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला का मतलब होता है इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसके बीच में एक रिलेशन है। ओके, मिरर फॉर्मूला इज व्हाट, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, इट इज अ रिलेशन
relationship between object, distance of object, distance of object, distance of image, distance of image, and focal length of the mirror. ठीक है? Yes, ma'am. डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग शो करते हैं स्मॉल यू से. ठीक है? इट इज शोन बाय स्मॉल यू. डिस्टेंस ऑफ इमेज इज सिंबलाइज्ड बाय स्मॉल वी. किससे करते हैं? स्मॉल वी. Yes, ma'am. While the focal length of the mirror is symbolized by small f. ठीक है? तो F. U, V Yes, ma'am. and F के बीच में जो रिलेशनशिप होता है for a spherical length of the mirror, for a spherical mirror is known as mirror formula. इसको क्या बोलते हैं? Mirror formula बोलते हैं. ठीक है? अब now first of all you have to understand. Okay. Now see, what I have tell, what is object distance? Object distance U का मतलब कोई बता सकते हैं? What is object distance? Ma'am, the distance of object from the mirror. From the mirror or from the pole? From the pole, ma'am. Yeah. Okay. Pole से आपका ऑब्जेक्ट किस डिस्टेंस पे रखा गया है? That distance is known as U. ठीक है? समझ में आ गया? और पोल Yes, से ma'am. आपकी इमेज कहाँ फॉर्म हुई है? दैट डिस्टेंस इज नोन एज V. क्या बोलते हैं इसको? V. इमेज डिस्टेंस और इमेज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम पोल. एंड व्हाट इज फोकल लेंथ? द डिस्टेंस ऑफ पोल टू एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर इज नोन एज फोकल लेंथ. ठीक है? समझ में आ गया ये चीज? तो U, V एंड F आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा. आपको समझना है व्हाट इज U, व्हाट इज V एंड व्हाट इज F. ठीक है? आई विल टेक न्यूमेरिकल्स आफ्टर दिस. यू विल अंडरस्टैंड इट मोर. समझ में आया बच्चे? नाउ Yes, ma'am. so the relationship is, और spherical mirrors का मतलब ये this formula is valid for both concave mirror as well as for convex mirror. ठीक है बेटा? ये फॉर्मूला किस पे? दोनों पे ही एप्लीकेबल है. द फॉर्मूला इज 1/U प्लस 1/V is equals to 1/focal length of the mirror. समझ में आया? This is what mirror formula. This is what mirror formula. 1/U plus 1/V is equals to 1/F. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Now one thing, this formula is valid for all spherical mirrors and for all the positions. आपका ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो ये फॉर्मूला लग जाएगा. अगर आप बोलोगे आपका मतलब आपका ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे, तो आपकी ऑब्जेक्ट U की वैल्यू कितनी होगी? इन्फिनिटी. तो 1/infinity इज क्या होता है? 1/infinity किसी को पता है? नो 1/infinity की वैल्यू कितनी होगी? 0. मैथ्स में नहीं पढ़ा है 1/infinity? हाँ बेटा Yes, ma'am, पढ़ा है. पढ़ा है ना? चलो, तो मिरर फॉर्मूला समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. इसको लर्न कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं. ठीक है? इसके बाद आपको नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ना है, वो है लेंस फॉर्मूला. तो मिरर वाले पार्ट में ये लास्ट, मतलब इसके बाद एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, वो इंपॉर्टेंट है. उसके बाद रिफ्लेक्शन खत्म. हमारा रिफ्लेक्शन आज खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट. ठीक है? नाउ शुड आई रब दिस? Should I rub this? Now there is a question
question, note down the question. If an object is placed 10 centimeter from convex mirror, if an object is placed at 10 centimeter from convex mirror of radius of curvature 60 centimeter, then find the position of image. Then find the image of the find the position of image. Then find the position of image. पहले क्वेश्चन समझ में आया? Have you understand the question? Yes, ma'am. Now, first thing first, what you will understand? पहली बात तो आप ये देखोगे कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है. कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर. Number 2, object is placed. That means what is given? आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? Given u is given. U is what? Object distance. And what is object distance? कितना दिया बेटा? 10 सेंटीमीटर. फर्दर आपको दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर. आपको दिया है क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हो गया? किसकी वैल्यू दी हुई है? Yes, and that is 60 centimeter. अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज एक्चुअली व्हाट? F की वैल्यू क्या होती थी? F इज इक्वल्स टू R/2. याद है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता था फोकल लेंथ. तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 divided by 2 and that is equals to 30 centimeter. Very good. Now you have to find what? You have to find the position of the image. आपका B का डिस्टेंस कितना होगा? Now you know the formula, you know the mirror formula, you have the distance U. आपके पास U भी है, F भी है. You have to find B. Kindly find B. B निकालो फटाफट से and tell me the value. By using the mirror formula, find out. अच्छा एक चीज और ये बताओ, U की वैल्यू 10 होगी कि -10 होगी? Yes, sir. The distance, object का distance 10 होगी. आपको पता है हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाएगा? लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ओवर हियर. और आपको पता है इस साइड के डायरेक्शन कैसे होते हैं? नेगेटिव. और इधर भी कैसे होते हैं? पॉजिटिव. तो ये 10 की जगह कितना होगा? -10 सेंटीमीटर. माइनस साइन बिकॉज इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर. इट इज अ convex mirror. No, it is not a convex mirror. The direction or the values on the left side is always taken as negative. समझ में आया? समझ में बेटा? Now 1/v is equals to -1/10. No, क्या? Sorry. फिर से बोलो बेटा. 1/v is equals to -1/10. नहीं, wrong. -1/15. पहली बात तो माइनस का आंसर आएगा नहीं. इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर. इमेजेस कहाँ फॉर्म होंगी? अच्छा रुको हम मिरर फॉर्म लगाते हैं. थोड़े रब दिस, ये रब कर दूं मैं? Now you know the formula 1/v plus 1/u is equals to 1/f. ये फॉर्मूला था आपका. यू हैव द वैल्यू ऑफ 1/u. आपके 1/u की वैल्यू है. आप इसको कहाँ पे लेके जाओ? RHS में. बिकॉज यू हैव टू फाइंड v ना. तो दिस बिकम 1/f minus 1/u. कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत? 1/v. What is the value f? 1/30.
Yes, ma'am. Yes. आई होप ये आपको समझ में आया होगा, बिकॉज ऑल द डिस्टेंसेस लेफ्ट साइड पे माइनस पे लेते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाएगा, लेफ्ट साइड पे. नाउ दिस माइनस 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 Yes. प्लस 1/10 एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 30. कितना आएगा एलसीएम, 30 आएगा. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, Yes, ma'am. 1 + 3 दैट इज 4/30. ये समझ में आया. इसको और सॉल्व करो, कितना आ जाएगा सॉल्व करके, 2/15 और करो डेसिमल में. मैम 7.5. Very good. The correct answer is 7.5 centimeter. This is the position of the object. समझ में आ गया बेटा. अभी कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो पूछ लो. Yes, ma'am. मैम डेसिमल निकालना कंपल्सरी है. 0.75 आएगा, 7.5 आएगा. हाँ बेटा. I'm 8 left from. सॉरी आई. अगर मैं हाँ प्रैक्टिस तक छोड़ दी तो गलत रहेगा. फ्रैक्शन तक छोड़ोगे तो देखो ऐसा होता है ना, जो बच्चा पूरा जैसे देखो ऐसा होता है बोर्ड में ना, टीचर्स को आंसर शीट मिलती है, टीचर्स गॉट आंसर शीट ऑफ बोर्ड पेपर. तो उसमें क्या होता है, और सारे आंसर इस हिसाब से होते हैं, तो इसमें आधा नंबर पूरा फाइनल आंसर निकालने का होता है. अब जिस बच्चे ने 2/15 निकाल के छोड़ दिया और एक बच्चे ने उसको आगे डेसिमल में भी निकाला है, तो किस बच्चे को आप ज्यादा मार्क्स दोगे, डेसिमल वाले को ना, क्योंकि उसे वहां तक निकालने के बाद भी आगे निकाला. ही हैव गिवन सम मोर एफर्ट. ठीक है, तो बस वैसे इतना भी मार्क्स नहीं कटता है, बट स्टिल अगर आप निकाल दोगे आगे तक तो वो और अच्छी बात है. ठीक है, चलो डू वन मोर क्वेश्चन. आई एम गोइंग टू गिव यू वन मोर क्वेश्चन. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड. शुड आई रब दिस? किसी को डाउट तो नहीं है ना बेटा? ओके. करना इसमें कंफ्यूज हो गया. 2/15 है तो हाँ, कोई नहीं. Write down. An object is placed at a distance of 8 centimeter. An object is placed at 8 centimeter from a convex mirror. From a convex mirror. From a convex mirror of focal length 12 centimeter. Of focal length. Of focal length 12 centimeter. Find the position of the object. No, sorry. Find the position of the image. Find the position of the image. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से करके बताओ. ओके मैम. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर में सारे ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस कैसे लोगे आप, नेगेटिव. तो u का डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एज 8 सेंटीमीटर, विच मीन्स u इज गिवन -8 सेंटीमीटर. ठीक है, अगेन फोकल लेंथ इज गिवन. आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ राइट साइड पे होती है, दैट इज व्हाई f इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव. प्लस 12 सेंटीमीटर फॉर कॉन्वेक्स मिरर, एंड यू हैव टू फाइंड b. 4.8 सेंटीमीटर. 4.8. 8. Very good, correct answer. Good. I hope you all understand. Now simple है, you know that 1/v plus 1/u is equals to 1/f. ठीक है, आपको 1/u दिया हुआ है, 1/v फाइंड करना है, इसको यहाँ ले जाओ. जो भी चीज आपको नोन है उस सबको एक साइड कर लो, अननोन को एक तरफ कर लो. So what you get? 1/v is equals to 1/f minus 1/u. What is the value of 1/f? 12 minus what is the value of 1/-8? And minus minus plus 1/12 plus 1/8. LCM कितना आएगा? 24. 24. 24. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इस तरफ? 3 plus 2. 3 plus 2. That is 5/24.
No, ma'am. 2 plus 3. 2 plus 3 and 2 plus 3 और 3 plus 2. 3. Okay, अच्छा. तो मैं थोड़ा 2 plus 3. 2 plus 3. 3. आया कितना? 4.8. 5 by 24. 4.8 centimeter. B की वैल्यू कितना आ गया? 4.8 सेंटीमीटर. ठीक है? समझ में आ गया? Yes, sir. वन मोर एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. एक क्वेश्चन और कर लो, उसके बाद फिर नेक्स्ट करते हैं. ठीक है? Okay, ma'am. And the answer is 4.8. सॉरी. Yes. ओके, जस्ट वेट. आई फाइंड वन मोर क्वेश्चन. अच्छा, एक क्वेश्चन फटाफट से लिख लो. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड an object is placed at a distance of 10 centimeter Yes, sir. from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Convex mirror of focal length 15 centimeter. Find the position and nature of the image. Find the position and nature of the image. Yes. ठीक है, फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ. Ma'am, 6 centimeter. 6 centimeter. यस, करेक्ट. चलो इसके And ma'am, the nature of image is कैसी होगी बताओ जल्दी. कैसा मिरर है? virtual. यस. और इरेक्ट और इन्वर्टेड? Erect. इरेक्ट. वेरी गुड. और साइज कैसा होएगा? Ma'am, वो क्या? साइज तो भी आपने निकाला. चलो अच्छा. Ma'am. अच्छा, अब हम लोग शुरू करें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला. ठीक है? Yes, ma'am. Yes. चलो, अब मिरर फॉर्मूला में न्यूमेरिकल्स आएगा तो लगा लोगे आप. Yes, ma'am. Yes. आपके पास कोई भी अगर अदर टेक्स्ट बुक हो या एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं उस पे सारे मिरर फॉर्मूला आप लगाओगे. ठीक है? सब न्यूमेरिकल्स लगाओगे. इधर इट इज ऑफ कॉन्केव और कॉन्वेक्स. देखो, ज्यादातर क्वेश्चन कॉन्वेक्स से आ रहे हैं. आपने देखा कॉन्वेक्स में क्यों आ रहे हैं? कोई बताएगा मुझे? Because उसमें माइनस लगता है इसलिए. हाँ, और कुछ मैम, चीज क्योंकि उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है. इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो आप लोग कंफ्यूज होगे. कॉन्केव में फोकल लेंथ माइनस में लोगे तो यहाँ पे चीजें कंफ्यूजन वाली हैं. और सिंपली आपको ये चीज समझनी है कि आपको अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप सारे कर लोगे क्वेश्चंस. तो आज जितनी भी अगर आपके पास, इफ यू आर हैविंग एस्टान, डू द न्यूमेरिकल फ्रॉम एस्टान. इफ यू आर हैविंग एनी अदर टेक्स्ट बुक आप उससे करिए. अदरवाइज मेरे पास अगर कुछ और क्वेश्चन होंगे तो आई विल सेंड इट टू यू. ठीक है बेटा? चलो, नाउ आई स्टार्ट द मैग्निफिकेशन. ऑल्सो मैग्निफिकेशन का एक न्यूमेरिकल और करा दें तो उसके बाद हमारा रिफ्लेक्शन टॉपिक खत्म हो जाएगा. ठीक है? Actually, ma'am. या बेटा? Ma'am, I have some doubts in side conversion. हाँ, प्लीज आस्क बेटा. Ma'am, मुझे समझ नहीं आया side conversion, ma'am. तुमने लेट क्लास ज्वाइन किया क्या? No, ma'am, network issue था. अच्छा देखो, मैं ऐसा करूंगी, इसका फोटोग्राफ खींच के आपको भेज दूंगी दोनों का. ठीक है? विद इमेज मैं पूरा अच्छे से खींच दूंगी. आप उसे पढ़ लेना. आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा. इफ यू आर नॉट एबल टू गेट इट यू कैन मैसेज मी ऑन माई पर्सनल. आई विल एक्सप्लेन इट. ठीक है बेटा? चलो, सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ रिफ्लेक्शन. हाँ बेटा? फिजिक्स कॉपी में न्यूमेरिकल्स लगाने की डिफिनेशंस लिखते हैं, मैम.
डिफरेंशियल्स बेटा सब करना है, सब एवरी सिंगल थिंग यू विल राइट डिफिनेशंस एज वेल एज ऑल द न्यूमेरिकल्स यू हैव डन. यू विल, आप ऊपर हेडिंग डालोगे मिरर फॉर्मूला, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला, और जितने एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जितने एस्टान में दिए हुए हैं, आप करोगे सारे. और जितने बोर्ड पेपर्स में आए हैं, आई हैव सेंड यू द बोर्ड पेपर्स, बोर्ड पेपर में जितने आए हुए हैं वो सारे भी करोगे. ठीक है? Okay. So this is our last topic of reflection, and that is magnification. Magnification. Magnification by spherical mirrors. By spherical mirrors. मैग्निफिकेशन का मतलब आप वर्ड से समझ रहे हो. मैग्निफिकेशन का मतलब का क्या हुआ? To magnify. टू मैग्नीफाई और टू सी वेदर समथिंग इज मैग्नीफाइड और नॉट. ठीक है? मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर में आप देखते हो, एक्चुअली मैग्निफिकेशन इट इज अ रेशियो. इट इज अ रेशियो. ठीक है? नंबर 1 इट इज अ रेशियो. नंबर 2 इट इज एक्सप्रेस्ड बाय स्मॉल एम, एंड it is a ratio of height height of object height of image and height of object to height of object. Very good. आपने अभी वेरियस इमेज फॉर्मेशन में पढ़ा था. ऑब्जेक्ट बड़ा है तो इमेज छोटी बन रही है, इमेज छोटी है ऑब्जेक्ट बड़ा है. तो ये सब कैसे आप कैलकुलेट करोगे? For this, we are actually having a formula which is known as magnification formula, and it is given by small m. Small m is equals to होता है height of image upon height इसको of small ऐसे लिखते हैं, अभी मैं लिख देती हूँ. ठीक है? upon height of object. Okay? Yes. h1 upon h2. This is the ratio. ठीक है? कोई ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है या कितना छोटा है उसकी इमेज से, तो वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो कि उनके बीच में रेशियो कितना है. फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू अबाउट दैट 3:1 का रेशियो है. h1 upon h2 is 3:1. इसका मतलब क्या हो गया? कौन बताएगा? इसका मतलब ये हो गया, if the object is 1x. Very good. You can understand it. If the object की अगर the height of the object is x, तो जो इमेज बनेगी वो 3 times x हो जाएगी. ठीक है? अगर ऑब्जेक्ट की हाइट अभी 3 सेंटीमीटर है तो इमेज की हाइट कितनी हो जाएगी? 27. वेरी गुड. 3 is a 9, 9 is a 27. 27. समझ में आ गया ये चीज? Yes, ma'am. Yes. अच्छा, मैग्निफिकेशन में एक और फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. सिंपली क्या होता है? V by U. V by U का मतलब, हाँ. और इमेज डिस्टेंस आपको पता है, इमेज डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में यहाँ पे लेते हैं. ठीक है? Minus, yes, ma'am. या माइनस V अपॉन U. दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन. अगर आपको क्वेश्चन में V और U दिया हुआ है और मैग्निफिकेशन का पूछा गया है तो भी आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ V एंड U. If the height of the object and image of the object is given, then you can also calculate the magnification कि कितना मैग्नीफाई हुआ है. ना एक क्वेश्चन फटाफट से कर लो. अच्छा, एक चीज और ये या And the second formula is, ma'am, on the basis of distance. या ये तो आपको पता ही है ना. V और U क्या है? दिस इज डिस्टेंस. अब मैंने इसको लिखा नहीं है पूरा. दिस एक्चुअली डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर. अब ये बार बार बेटा बताने की जरूरत नहीं है. ठीक है? सेम चीज बार बार आप इसको समझ रहे हो. इट इज अंडरस्टूड. नाउ वन मोर थिंग. अच्छा, एक क्वेश्चन कर लो. चलो. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड Yes, sir. an object is placed at a distance of 12 centimeter Yes, sir. in front of a concave mirror. It forms a real image. Yes. 4 times
times larger than the object, 4 times larger than the object, full stop. Calculate the distance, calculate the distance of image from the mirror. अब एक चीज मुझे आपको क्या 4 सेंटीमीटर। नहीं, मेरी बात सुनो। अच्छा, एक चीज आपको और पता होनी चाहिए। अगर आपका साइन ऑफ, देखो जब भी रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी, मैग्निफिकेशन का साइन आप हमेशा नेगेटिव लोगे, ठीक है। और अगर वर्चुअल और इरेक्ट होगी तो साइन ऑफ मैग्निफिकेशन विल बी टेकन एज पॉजिटिव। दिस वन मोर थिंग, ये साइन डायमेंशन में आप लिख लो। नेगेटिव साइन कब लोगे? जब रियल और इन्वर्टेड इमेज है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, एंड पॉजिटिव साइन विल बी टेकन व्हेन द इमेज इज वर्चुअल एंड एरेक्ट, ठीक है। ओके मैम। तो अगर अभी आपको 4 दिया हुआ है, आपको पता है कॉनकेव मिरर है, तो इमेज कैसी फॉर्म होगी? रियल एंड, आपको दिया भी हुआ है क्वेश्चन में, द इमेज फॉर्म इज रियल, तो इट मीन्स यू विल टेक मैग्निफिकेशन स्मॉल m एज -4। समझ में आया? Yes, ma'am. u की वैल्यू क्या होगी? u की वैल्यू 12 दी है, तो u की वैल्यू कितना लोगे उसको? नो, -12, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है, तो कैसी वैल्यू हो जाएगी? -12। अब आपको पता है डिस्टेंस के टर्म में फॉर्मूला क्या होता है m का? -b/u। आपको m की वैल्यू कितनी दी है? -4, -b की वैल्यू आपको निकालनी है, u की वैल्यू कितनी है? -12, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा? b इक्वल्स टू 48। -3 सेंटीमीटर। -3 कैसे हो रहा है बेटा? मैम 3 मैम उन्होंने डिवाइड कर दिया मैम। डिवाइड नहीं करना है, मल्टीप्लाई होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यस सर। रुको बताती हूँ। आई एम क्लियरिंग द पॉइंट। एक सेकेंड, आपको u दिया है -12 सेंटीमीटर, v आपको निकालना है, मैग्निफिकेशन आपको दिया है 4, बट आपको पता है किसने दिया हुआ है? रियल इमेज है, इट मीन्स यू विल टेक इट विद नेगेटिव साइन -4 सेंटीमीटर। जब भी इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगी, इट इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, एंड इफ द इमेज इज फॉर्म्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट, यू विल टेक द मैग्निफिकेशन साइन विद पॉजिटिव। आपको पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, फॉर्मूला पता है ना? अब m की जगह पे m की वैल्यू रख दो। Just put the values of m. What is the value of m? -4 सेंटीमीटर। -v की वैल्यू आपको पता नहीं है, u की वैल्यू कितनी है? -12। अब देखो माइनस साइन ऊपर नीचे कट हो जाता है, just cut the minus sign. This become what? v को इस साइड पे रखो और ये इधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस बिकम -4 into 12, -4 into 12 centimeter. Just wait. Okay. Now -4 into 12 will be equals to -48 centimeter. This is the value of position of the image. अब मुझे ये बताइए, इमेज कहाँ फॉर्म हो रही होगी? लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे? नो, लेफ्ट साइड पे, बिकॉज नेगेटिव साइन इज हियर। इसका मतलब या ऑब्जेक्ट भी यही कहीं रखा हुआ है और इमेज भी कहाँ फॉर्म हो रही है? इसी तरफ फॉर्म हो रही है। समझ में आया? ओके। So for today's class, I think all of you all understand mirror formula, sign convention and magnification. तीनों चीजें समझ में आ गई बेटा? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. If you are having any doubt, you can go through the videos again. Number 1, number 2, you can ask your doubts on WhatsApp groups and on my personal too. ठीक है बेटा? So hope you all meeting you in the next class. Thank you and God bless you all. Thank you, ma'am. Okay बेटा.